ابھی وہ سٹیز کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں کچھ ایسی شکیں شامل تھی جس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شک اس کے اندر یہ بھی تھا کہ طالبان اسی وقت تک سٹیز پر قبضہ نہیں کریں گے جب تک وہاں سے امریکن فورسز کا مکمل وڈرا نہ ہو جائے۔ تو یہ بات کی جا رہی، سوال سے طالبان اسپوکس مین سے بھی ایک مرتبہ میں نے یہ سوال کیا تھا، لیکن اس نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر وہی بات ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 31 اگست تک طالبان بڑے شہروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور یہ جس طریقے سے ابھی آہستہ آہستہ سائٹ پہ جو اضلاع ہے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ مختلف اضلاع کو قبضے میں لے رہے ہیں، تو 31 اگست تک یہ اسی طرح پھیلتی جائیں گے۔ لیکن جو ریسنٹلی تقریباً 2 دن پہلے ان کے ایک بڑے اہم رہنما سے میری بات ہو رہی تھی، تو ابرار صاحب نے جو ذکر کیا کہ طالبان کے 90 میں اور ابھی ان کے مزاج میں کیا فرق ہے، اور دوسرا کیا وہ زبردستی کابل کے اندر داخل ہوں گے یا وہ نیگوشیشن کی طرف بڑھیں گے۔ تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہم افغانستان کے جو مختلف لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور انہوں نے اس جمعے کا دوحہ کے اندر جو میٹنگ ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ افغانستان کے جو کی لیڈرز ہیں، جو اہم پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ دوحہ آ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کر افغانستان کے مسئلے کا ایک حل نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور زبردستی کابل کے اندر داخل ہوں گے تو اسی صورت میں ان کو کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور صورتحال سیول وار کی طرف جا سکتی ہے، جو ہم نے پہلے بھی افغانستان کے اندر دیکھا۔ تو یہ ایک خوشائن جو تبدیلی ان کے اندر مجھے محسوس ہوئی کہ وہ ان لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے اور ان کو گورنمنٹ کے اندر شیئر دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور ابھی جو پاکستان کی ایک سر جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان بھی ایک کوشش کر رہی ہے، اور حامد کرزئی صاحب یا گلبدین حکمتیار صاحب یہ سارے لوگ اسلام آباد آئیں گے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور طالبان بھی اس کے لیے ایگری ہے۔ ابھی ریسنٹلی ابھی تک وہ سینٹرل ایشیا میں ہے، رشیا کے اندر ان کے جو ملاقاتیں ہوئی یا اس کے بعد جو سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ کے اندر آفیشل سے ان کے بات چیت ہوئی، تو وہاں پہ ایک چیز جو میرے سامنے ابھی تک آئے ہے کہ وہ یہ سٹریس کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر ہماری حکومت آئے گی تو آپ ان کو تسلیم کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی طور پہ طالبان اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ کابل کے اندر داخل ہوں گے، لیکن وہ اگر داخل بھی ہوں گے تو وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہاں پہ اندر داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن جو ایک رکاوٹ مجھے محسوس ہو رہا ہے اور جو نظر آ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ابھی دوحہ جا رہے ہیں فرائیڈے کو، تو یہ طالبان پہ یہ دور دیں گے کہ آپ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو ایک سسٹم ہے، آرمی کا ہے، پولیس کا ہے، دیگر جو ادارے ہیں، آپ ان کو کنٹینیو رہنے دیں گے۔ اور میرے خیال میں طالبان جو پہلے ان کے میں انٹرویو کر چکا ہوں تو وہ اس چیز کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ اگر وہ تیار بھی ہوں گے تو اسی صورت میں وہ تیار ہوں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو آرمی کے اندر بھی ایڈجسٹ کریں گے، پولیس کے اندر بھی ایڈجسٹ کریں گے، اور جو کی پوزیشن ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اسی صورت میں شاید وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ ابھی دیکھنا ہے کہ کیا باقی جو افغان لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ جو اسپیشلی نادرن الائنس کے لوگ ہیں، جو پہلے سابقہ نادرن الائنس تھا، کیونکہ ابھی کی پوزیشن پہ کافی ساری ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ طالبان اگر اس چیز کے لیے راضی بھی ہو جائے، لیکن ان کا اگر شرط یہ ہو کہ کی پوزیشن پہ ان کے لوگ آئیں گے تو اسی صورت میں ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتی ہے، یا وہ اس چیز کو مان لیں گے۔ لیکن ایک اور چیز جو سر بڑی تشویشناک ہے افغانستان کے اندر کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کندہار سے جب انڈین اپنے کنسلیٹ کے لوگ وہاں سے لے کر جا رہے تھے، تو وہاں ایک ان کی C-130 جو پلین تھے وہ کندہار میں آئے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے آفیشیلی، تو یہ ابھی تک کنفرم بھی نہیں ہوئی ہے، اور نہ آفیشیل کنفرمیشن افغانستان کی طرف سے آ سکتی ہے کہ سر آپ کو زیادہ علم ہوگا کیونکہ آپ خود ایمبیسڈر رہے کہ ایک کنسلیٹ کے اندر کتنے
डिप्लोमेट हो सकते हैं कि उनके लिए इतना बड़ा जहाज आप लेकर आएंगे। तो उसके हवाले से बात की जा रही है कि इंडिया वहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि नमरोज में जो कुछ बलोच वहाँ पे रह रही हैं, जो बलूचिस्तान से जाकर वहाँ पे अभी मुकीम है, इंसर्जेंट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा है, कि उनको असलाह देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी जिस तरह के जनरल बिस्मिल्लाह ने एक बात की थी कि अभी प्राइवेट मलेशिया हम बनाएंगे और वो भी तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, तो वो जो बलोच वहाँ पे मुकीम है उनको भी सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत करें। तो ये एक चीज़ भी तशवीशनाक है, क्योंकि कल मैं उनका जो एक खलील बलोच था उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि अभी अफगानिस्तान के अंदर हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई है और अगर तालिबान इक़्तिदार में आएंगे तो फिर अफगानिस्तान के अंदर हम लोग नहीं रह सकते। तो उन्होंने यूएन से अपील की थी कि यूएन हमें सपोर्ट दे और हमें अफगानिस्तान से निकाले। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको भी मतलब देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का वहाँ पे जो एक किरदार है वो बड़ा अफसोसनाक किस्म का है, क्योंकि दुनिया के अंदर तो उनके फॉरेन मिनिस्टर को मैं देख रहा था कि हम अफगानिस्तान के अमन में अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी उनकी जो जो कुछ वो अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं, तो उससे जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी बार बार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि जो स्पॉइलर है वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए। तो ये एक अवर चीज़ है जिसपे नज़र रखने की ज़रूरत होगी दुनिया को, कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन लेकर आना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेके आ सकता। पाकिस्तान के लिए अकेला ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बाकी नाइबर्स हैं अफगानिस्तान के, वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान के अंदर हर सूरत में वहाँ पे अमन आ जाए। एक और जो तीसरी चीज़ है वो अफगानिस्तान के मीडिया है। अफगानिस्तान की मीडिया के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और सर आपको ज़्यादा इल्म होगा क्योंकि आप काबुल के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर दे रहे हैं। अफगानिस्तान की इस वक्त जितनी भी जर्नलिस्ट है, ख्वाह वो पश्तून है, ख्वाह वो ताजिक है या कोई और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा, जो भी वहाँ पे करेगा, तो उसका सारा इल्ज़ाम उनके ऑफिशियल्स अमरुल्लाह सालेह या रहमतुल्लाह नबी या इस तरह के लोग और उनके मीडिया वो पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान वहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि अभी जो तालिबान के एडवांसमेंट वहाँ की जारी है, तो इसमें तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह को हम देख रहे हैं कि वो अब भी पाकिस्तान को पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें पाकिस्तान कर रही हैं। और वहाँ पे अफगानिस्तान की मीडिया ने जो अफगान लोग हैं, जो अवाम है, उनके अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पैदा की है। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान को इस चीज़ का पहले से नोटिस भी लेना चाहिए था, और इस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर जिन इंडियन अफगान जर्नलिस्ट को मैं जानता हूँ उनमें काफ़ी सारे वो बाकायदा न्यू दिल्ली लेकर गए थे, उनके बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग कराई गई थी और उनका एक किस्म का ब्रेन वॉशिंग वहाँ पे किया गया था। और अभी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के हवाले से उनका जहन कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो अफगानिस्तान के अंदर हो रही है ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। तो एक तो अफगान मीडिया का जो मौजूदा किरदार है वो भी बड़ा मनफी है, क्योंकि वो वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हैं। जो ग्राउंड पे रियल सिचुएशन है उसको अफगान मीडिया रिपोर्ट नहीं करते। और एक और जो चीज़ जो कल रात में एक उसको देख रहा था, तो इंडिया का एक न्यूज़ एजेंसी है जिनके हवाले से रिसेंटली लास्ट ईयर जब EU डिस्इन्फोलैब ने एक रिपोर्ट जारी की थी, तो उसमें ANI का उन्होंने जिक्र किया था। ये इंडिया का एक प्रीमियर न्यूज़ एजेंसी है। तो मैं देख रहा था कि वो अफगानिस्तान की तुलू न्यूज़ के सारे न्यूज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं उसको उठाकर वहाँ के इंडियन मीडिया के अंदर पब्लिश करते हैं। तो ये भी एक जो उनकी एक स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बनाई थी, और उसमें अभी तक अमल हो रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को दुनिया के सामने इस अंदाज से पेश करे कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा है और उसके पीछे पाकिस्तान ही है। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रही है और हमें जो रिपोर्ट आ रही है अफगानिस्तान से, तो सम टाइम जब मैं डेस्क पे उन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे भी बड़ा अजीब किस्म का
अफसोस होता है कि अफगानिस्तान के अंदर अभी हर रिपोर्ट के अंदर वो जिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पब्लिश होगी तो उसमें ज़रूर पाकिस्तान के हवाले से कुछ न कुछ पेरास शामिल होंगे और वो पाकिस्तान को अब भी इस चीज़ के लिए दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें अब भी पाकिस्तान कर रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तान के एफर्ट्स को देख रहे हैं जिसको दुनिया ने भी एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने क्या अहम किरदार उसमें अदा किया। एक आखिरी चीज़ जिस पर सर ने बात करूंगा वो दाइश है। दाइश चूंकि जो तालिबान का ख्याल है या तालिबान की लीडरशिप से जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये एक सोच था और उनका ये एक ख्याल था कि अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश है उसको बेसिकली इंडियन और अमेरिकन ऑपरेट कर रहे हैं और उनको जो जितना भी सपोर्ट है और इस हवाले से करते साहब की एक इंटरव्यू भी आई थी जिसमें उन्होंने खुद भी अमेरिका का जिक्र किया था कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो सारा सपोर्ट है वो उनकी तरफ से दी जा रही है। तो अभी तालिबान का जो दोहा में उनके फॉरेन मिनिस्टर गए थे इंडिया के, अभी फिर ईरान में भी गए, रशिया में भी तालिबान के पीछे गए। तो ये जो मेन चीज़ है तालिबान अभी उन पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि दाइश को इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ सपोर्ट किया था और फ्यूचर में भी उनका ये ख्याल है कि दाइश को उसी तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अगरचे जिस तरह के वो निंगरहार के अंदर तालिबान के साथ उनके लड़ाई चल रही थी और ग्राउंड पे वो मौजूद थे, उसी तरह तो वो नहीं आ सकते लेकिन उनके हाइड आउट्स अफगानिस्तान के अंदर वो बना सकते हैं और वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाइश अफगानिस्तान के लिए एक खतरा मौजूद है जिस पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया को भी काफ़ी तशवीश भी है और तालिबान को भी है और तालिबान स्टिल इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इसके पीछे हिंदुस्तान का जो एक रोल रहा है, हिंदुस्तान स्टिल अभी उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर है, उस पर भी देखा जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सारी जो ग्रेवेंसेस है तमाम पार्टियों के अफगानिस्तान के अंदर उनको किस तरीके से वो हल करेंगे या किस तरीके से उनको एड्रेस करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर ये हल होंगे तो उसी सूरत में अफगानिस्तान के अंदर एक तिरपा अमन कायम हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे मौजूद होंगे और इन जो स्पॉइलर के हवाले से बात की जा रही है अगर वो बदस्तूर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद होंगे तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर तिरपा अमन का क़याम जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच।